کے ساتھ اسلام آباد میں سنجانی ٹول پلازا کے قریب نامعلوم افراد نے قیدی وین پر حملہ کر دیا۔ ملزمان متعدد قیدیوں کو چھڑوا کر لے گئے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں، آج نیوز کے نمائندے فہد بشیر ہمارے ساتھ ہیں۔ فہد بشیر، معاملہ کیا ہے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، بالکل دہشت گردی مقدمات میں ملوث پی ٹی آئی ملزمان کی قیدی وینوں پر نامعلوم افراد کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا، جبکہ پولیس ذرائع نے بتایا کہ نامعلوم افراد متعدد قیدیوں کو چھڑوا کر لے گئے تھے۔ اس وقت کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اسلام آباد سنجانی ٹول پلازا پر جو تھانہ ترنول اور تھانہ سنجانی کی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ چکی ہے، اور جو ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ فرار ملزمان کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا ہے، جبکہ ذرائع نے یہ بتایا کہ پولیس نے واقعے سے متعلق عینی شاہدین سے بھی پوچھ گچھ شروع کر دی ہے، جبکہ پولیس ذرائع نے چیز کا دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں ملوث 4 جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ جب سے ہم نے دیکھا کہ وینوں میں اٹک جیل سے پیشی کے لیے لائے جانے والے قیدی سوار تھے، قیدی وینوں میں 150 سے زائد جو ہے قیدی موجود تھے، پولیس ذرائع نے یہ بتایا، جبکہ اب جو فرار ملزمان کی تلاش کے لیے جو علاقے میں جو ہے وہ سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ پولیس ذرائع نے بتایا کہ اس وقت 4 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے، اور جو مزید جو ہے وہ جو تحقیقات ہیں وہ اس کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ جس طرح آپ نے بتایا کہ سرچ آپریشن کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، یہ بتائیے گا کہ وینز میں 150 سے زائد قیدی موجود تھے، کیا کہا جا رہا ہے کتنے قیدی جو ہیں وہ فرار ہوئے ہیں؟ دیکھیں، بالکل جو ہمیں جو پولیس ذرائع نے بتایا کہ حملے کے بعد وینوں میں سوار جو متعدد قیدی بھی جو ہے وہ فرار ہو گئے تھے۔ وینوں میں اٹک جیل سے پیشی کے لیے لائے جانے والے قیدی سوار تھے، اور قیدی وینوں میں 150 سے زائد قیدی موجود تھے، یہ پولیس ذرائع نے ہمیں بتایا، جبکہ یہ واقعہ پیش آیا سنجانی ٹول پلازا پر کے قریب آیا، جبکہ اس وقت جو پولیس کی بھاری نفری جو ہے جے وقوع پر پہنچ چکی ہے، اور ان کی جانب سے علاقے میں سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا گیا ہے، اور صرف اب تک جو پولیس جو ہے ان کی جانب سے حملے میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کیا گیا، یہ پولیس ذرائع کا بتایا گیا پولیس ذرائع کی جانب سے، جبکہ حملے کے بعد وینوں میں سوار متعدد قیدی بھی فرار ہو گئے تھے، جبکہ نامعلوم افراد نے پولیس قیدی وینوں پر فائرنگ کی اور شیشے بھی توڑ ڈالے تھے۔ جی، جس طرح فہد بشیر آپ کہہ رہے ہیں کہ شیشے بھی توڑ ڈالے، فائرنگ کا بھی جو ہے وہ وہاں پر سلسلہ ہوا، تو کوئی قیدی زخمی تو نہیں ہوا؟ دیکھیں، بالکل جو اب تک کی اطلاعات ہمارے پاس آئی ہیں اس کے مطابق یہ بتایا گیا کہ جو نامعلوم افراد تھے جن کی جانب سے جو ہے قیدی وین پر فائرنگ کی گئی اور شیشے توڑے گئے، اس کے بعد پھر جو قیدی وین میں موجود جو قیدی تھے ان کو چھڑوا کر لے جایا گیا تھا، جبکہ وینوں میں اٹک سے جیل سے پیشی کے لیے لائے جانے والے قیدی اس وین میں سوار تھے، جبکہ 150 سے زائد یہ بتائی گئی ہے تعداد جو قیدی وین میں موجود تھے جو قیدی، جبکہ جو اس وقت جو پولیس ہے ان کی جانب سے یہ بتایا گیا، ہماری گفتگو بھی ہوئی، جو ترجمان اسلام آباد پولیس ہے ان کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی، یہ واقعہ پیش ہے، جبکہ اس کی تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں، اور جو فرار ملزمان کی تلاش کے لیے علاقے میں اب جو سرچ آپریشن بھی شروع کیا گیا ہے، اور اس واقعے سے متعلق جو عینی شاہدین ہے اس سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، لیکن تاحال ابھی تک کسی بھی جو ہے اہل علاقہ اس میں کوئی بھی جو شخص ہے وہ زخمی نہیں ہوا ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق، جبکہ پولیس کی جانب سے جو موقع پر موجود عینی شاہدین تھے ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، لیکن اب تک جو پولیس ذرائع ہے ان کا یہ بتانا ہے کہ صرف اب تک 4 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا اور اب ان سے بھی تحقیقات عمل میں لائی جا رہی ہے۔ فہد، جس طرح یہ بالکل ٹول پلازا کے قریب یہ قیدی وین پر حملہ کیا گیا ہے، جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر کیمرے جو ہیں وہ نصب کیے گئے ہیں، کسی قسم کی کوئی فوٹیج سامنے آ گئی ہے کہ کون لوگ ہیں کہ ان کی جانب سے یہ فائرنگ کی گئی تھی؟ دیکھیں، بالکل جس طرح کہ اسلام آباد میں سیف سٹی کے حوالے سے بھی جو اسلام آباد پولیس کی جانب سے کہا جاتا ہے، اس حوالے سے ان کی جانب سے کہا گیا کہ تحقیقات عمل میں لائی جا رہی ہیں، CCTV فوٹیج کی مدد سے بھی جو ہے جو فرار ملزمان ان کا تعاقب بھی کیا جا رہا ہے، اور جو ترجمان اسلام آباد پولیس ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ واقعے کے تمام تر جو شواہد ہیں وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اور اس کو جو ذرائع ہیں پولیس کا ان کا یہ بتانا ہے کہ جو فرار ہونے والے ملزمان ہیں ان میں سے 4 کو ابھی تک جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، اور دیکھا یہ بھی جا سکتا ہے یہ جو سنجانی ٹول پلازا کے قریب جو ٹریفک کا فلو ہے وہ بھی برقرار رہتا ہے، لیکن جو افسوسناک واقعہ پیش ہے پولیس کی جانب سے شواہد اکٹھے بھی کیے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے جو اب تک کی اطلاعات کے مطابق کہ وقتاً اس حوالے سے جو میڈیا کو بھی آگاہ کیا جائے گا، اور ابھی تک جو اسلام آباد پولیس کی جانب سے کوئی اسٹیٹمنٹ بھی سامنے نہیں ہے، لیکن جو ہمارے ترجمان اسلام آباد پولیس ہیں ان سے جب گفتگو ہوئی تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس تمام جو واقعے کے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کی جانب سے اس واقعے کی تصدیق ضرور کی گئی ہے کہ یہ واقعہ پیش ہے، جبکہ اب جو پولیس ہے ان کی جانب سے تھانہ ترنول اور تھانہ سنجانی کی جو پولیس کی بھاری نفری بھی پہنچ چکی ہے، پولیس کے افسران بھی جے وقوع پر پہنچ چکے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو واقعے سے متعلق جو عینی شاہدین ہیں ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، اور یہ سنجانی ٹول پلازا کے قریب جب یہ واقعہ پیش آیا تو جو عینی شاہدین
शाहीदीन वहाँ पे मौजूद थे। जो कैदी थे वो तो वहाँ से फरार हो गए थे, लेकिन एनी शाहीदीन से इस वक्त भी पुलिस की जानिब से पूछताछ की जा रही है। और जो अभी तक की इतलाह के मुताबिक अब तक जो पुलिस है उनकी जानिब से सिर्फ 4 मुल्जमान को गिरफ्तार ठीक है। ये फहद आपसे जानना चाहेंगे कि 150 कैदी थे जो इस वक्त मैन में मौजूद थे, ये आपसे जानना चाहेंगे कि 150 कैदी थे, ये किन किन मुकदमात के अंदर गिरफ्तार थे, इन पे कौन कौन से मुकदमात थे, कौन कैदी थे, कुछ मालूम हो सका है? देखिए बिल्कुल इस हवाले से जो पुलिस के जो तर्जुमान है हमारी उनसे गुफ्तगू भी मालूमात लेने के लिए उनकी जानिब से सिर्फ ये बताया गया है कि इस वाक़े की तस्दीक तो जरूर की गई, लेकिन उनका ये कहना है कि जो तहकीकात हैं वो अमल में लाई जा रही हैं, उस हवाले से आगाह किया जाएगा। लेकिन जो ये जरूर बताया जा सकता है कि जो दहशतगर्दी की दफात में मुलविस PTI मुलजमान की कैदी वैन पर जो है नामालूम अफराद की जानिब से ये हमला किया गया है, जिसके बाद जो नामालूम अफराद हैं उनकी जानिब से मुतअद्दिद कैदियों को जो छुड़वा कर जो वो ले गए थे। और कैदी वैन में 150 से ज्यादा जो है कैदी मौजूद थे, जिनमें अब जो पुलिस की जानिब से दायरा जो तहकीकात का वसी कर दिया गया और जो इलाके में भी सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और जो एनी शाहीदीन थे उनसे पूछताछ जारी की गई है। और 4 जो है मुलजमान अब तक जो पुलिस राय के मुताबिक जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं और उनसे भी अब मालूमात ली जा रही है। और जो दीगर कैदी के लिए भी पुलिस की जानिब से इलाके में छापे मारे जा रहे हैं। फहद, ये बताएगा कि पुलिस ने हमले में मुलविस 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। इन 4 मुलजिमान से किसी किस्म की कोई तहकीकात सामने आई है कि इनका ताल्लुक कहां से है? देखिए बिल्कुल अब से कुछ देर कबल भी जो IG इस्लामाबाद है उनकी जानिब से एक गुफ्तगू भी उनका ये कहना था कि 3 कैदी वैन में जो इस बात की तस्दीक की गई कि 82 मुलजमान मौजूद थे जिन्हें पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। जबकि अली नासिर रिजवी ने यह बताया कि संजानी टूल प्लाजा के पास नामालूम मुलजमान कैदी वैन पर हमला आवर हुए, जबकि हमले के बाद कुछ कैदी वैन से फरार हो गए। ये IG इस्लामाबाद की जानिब से गुफ्तगू की गई, जबकि फरार होने वाले कैदियों को दोबारा जो है IG इस्लामाबाद की जानिब से दावा किया गया है कि गिरफ्तार कर लिया गया। अब की ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जबकि पुलिस ने कैदियों को फरार करवाने की कोशिश नाकाम जो है वो बना दिए। ये अभी जो IG इस्लामाबाद है लेटेस्ट डेवलपमेंट के मुताबिक उनकी ये जो स्टेटमेंट है ये सामने आई है। जबकि जो IG इस्लामाबाद जहाँ से कहा गया कि 3 कैदी वैन थी जिनमें 82 मुलजमान मौजूद थे जिनको पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। और अब इस हवाले से भी जो तहकीकात अमल में लाई जा रही है। ठीक है फहद, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी साहब, संजानी टूल प्लाजा के करीब कैदी वैन पर हमला हुआ है और उस कैदी वैन में 150 से ज्यादा कैदी मौजूद थे और 4 मुलजमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मजीद कोई लेटेस्ट अपडेट आई है आप तक? देखिए मुख्तलिफ इतलात हैं। इतलात ये हैं कि इनमें से अक्सर का ताल्लुक उन लोगों से है जो कि हालिया जो प्रोटेस्ट थे ये 2-3 उसमें डी चौक पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए गए थे। खास तौर पर जो 4 अक्टूबर को प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर भी डी चौक तक कुछ लोगों को लेकर कामयाब हुए थे। और ये सारे कारकुन जो हैं उस दौरान मुख्तलिफ मकामात से गिरफ्तार हुए थे, जिनमें से कुछ संजानी से गिरफ्तार हुए थे, कुछ को डी चौक से गिरफ्तार किया गया था और कुछ को दीगर मकामात से गिरफ्तार करके मुख्तलिफ थानों में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए थे। अभी तक इन कैदियों की शिनाख्त जो है वो की जा रही है कि ये जो 150 कैदी थे इनकी शिनाख्त क्या है, इनके मुख्तलिफ जो कैदी फरार हो गए हैं वो कौन से हैं, जो रह गए हैं वो कौन से हैं। और ये भी पता चला है कि 4 कैदी गिरफ्तार भी हुए हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि इनमें से कुछ जो है वो हाई प्रोफाइल कैदी भी थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुख्तलिफ वज़ों पर फाइज थे। अभी तक इसकी हतमी तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी कि इनमें से जो हाई प्रोफाइल कैदी थे वो कौन से वज़ों पर थे, क्या वो अरकान असेंबली थे या तंजीमी अहदेदार थे। इस्लामाबाद पुलिस जो है वो अपने रिकॉर्ड की मदद से इसकी तस्दीक कर रही है। जी ठीक है तारिक चौधरी, IG इस्लामाबाद के जानिब से किसी किस्म का कोई रद्द अमल सामने आया है, इस हवाले से कोई बयान सामने आया, ये आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि संजानी टूल प्लाजा है, ट्रैफिक का जो सिलसिला है वो क्या रोक दिया गया है, क्या सिचुएशन है इस वक्त आजतरी यहाँ पर? ट्रैफिक तो नहीं रोकी जी। जो IG साहब हैं उनकी तरफ से जो बयान अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो क्राइम रिपोर्टर हैं फहद वो बता रहे थे कि IG साहब ने कहा है कि जो कैदियों को फरार होने की फरार करने की कोशिश थी वो नाकाम बनाई गई है। और ये भी कहा गया है कि ज्यादातर कैदियों को जो फरार होने की कोशिश कर रहे थे वो गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हतमी तौर पर तस्दीक की जाएगी, जब गिनती कर ली जाएगी तो पता चलेगा कि 150 में से कोई कैदी ऐसा है जो अभी तक मिसिंग है या सारे कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तक IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी साहब जो हैं उनकी तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है कि नामालूम मुलजमान ने कैदियों को छुड़ाने के लिए हमला किया था, तमाम ज्यादातर जो कैदी हैं उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये भी पता कर रहा है कि जो कैदियों को फरार करने की कोशिश थी
इस बात की तस्दीक की है रियासत रिजवी साहब ने, इस कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। तारिक चौधरी, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। फहद, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कोई पुलिस एहलकार के जख्मी होने की इत्तलात सामने आई है? देखिए, बिल्कुल अब तक की जो इतलात के मुताबिक कोई पुलिस एहलकार भी जख्मी नहीं हुआ, जबकि जो अहले इलाके हैं वो भी जो इस वाक़े के बाद जैब कुआं पर पहुंचे थे। और जो अब तक जो इस्लामाबाद पुलिस है उनकी जानिब से भी अभी ऑफिशियली कोई इस तमाम तर सूरत के हवाले से बयान भी जारी नहीं किया गया, जबकि IG इस्लामाबाद की जानिब से जो है इस हवाले से एक बयान सामने आया। उनकी जानिब से बताया गया कि संजानी टूल प्लाजा के पास नामालूम मुल्ज़मान कैदी वैन पर हमलावर हुए और बताया गया कि हमले के बाद कुछ कैदी वैन जो है वो कैदी वैन से फरार हो गए थे मुल्ज़मान, जबकि पुलिस ने कैदियों को फरार करवाने की कोशिश जो है वो नाकाम बना दी है। ये IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का कहना है कि जो फरार होने वाले कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। और ये भी बताया गया है कि 3 कैदी वैन में 82 मुल्ज़मान मौजूद थे, जिन्हें पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था, जबकि इस जो पुलिस है थाना तरनौल की, थाना संजानी की भारी नफरी कैमरा जैब कुआं पर पहुंची हुई है और उनकी जानिब से मजीद जो तहकीकात अमल में लाई जा रही है और इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जो पुलिस की जानिब से जारी है और जो ऐनी शाहिदीन है उनसे भी पूछताछ जो है वो की जा रही है। और अब तक की इतलात के मुताबिक किसी भी पुलिस एहलकार की और जो अहले इलाके ऐनी शाहिदीन है उनके जख्मी होने की इतलात मौसूल नहीं हुई। जी ठीक है फहद, ये बताइएगा कि मुकम्मल तौर पर क्या कोई सामने हिस्ट्री आई है कि कितने कैदी हैं जो कि वैन से फरार हो गए हैं और कितने कैदी हैं जिनको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह के जो जराये थे उनकी जानिब से बताया गया था कि जो कैदी वैन में कैपेसिटी होती है वो 100 से ज्यादा कैदियों को जो है वो लाया जाता है पेशी के मौके पर, लेकिन जो IG इस्लामाबाद है उनकी जानिब से बताया गया कुल जो 3 कैदी वैन थी जिनमें 82 मुल्ज़मान मौजूद थे जिन्हें पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। और जो संजानी टूल प्लाजा के पास जो है नामालूम मुल्ज़मान की जानिब से ये हमला किया गया था। और जो पुलिस है उनकी जानिब से अब तक कोई भी जो ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी नहीं की गई इस वाक़े के हवाले से, लेकिन जो तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस है जो हमारी उनसे गुफ्तगू हुई उनका ये कहना था कि इस हवाले से मैं तस्दीक तो जरूर करता हूँ, लेकिन अब से कुछ देर बाद जो तमाम जो जाविये से तहकीकात इकट्ठी की जाएगी फिर जो ऑफिशियली स्टेटमेंट ही जारी की जाएगी। जबकि IG इस्लामाबाद की जानिब से एक गुफ्तगू के दौरान ये बताया गया था कि पुलिस ने कैदियों को फरार करवाने की कोशिश नाकाम बनाई और फरार होने वाले कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। ये कहना है IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का, जबकि जो CCTV कैमरे और दीगर पहलुओं से भी जो है पुलिस से तमाम जो है वो जो तहकीकात है उनकी जानिब से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और उनका ये कहना है कि कुछ देर बाद जो है ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी की जाएगी। ठीक है फहद, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। तारिक चौधरी, इस वाक़े से आपको नहीं लगता कि इस्लामाबाद में भी थोड़े से हाई अलर्ट जो हैं वो चीजें हो गई हैं, क्योंकि ये वाक़या इस तरह रोनुमा होना एक सवालिया निशान भी बनता है। दहशतगर्दी के मुकदमात में जो कैदी थे वो 3 कैदी वैन थी और 82 मुल्ज़मान उसमें मौजूद थे। देखिए, जब भी प्रिजन वैन में कैदियों को लेकर लाया जाता है तो उसके कुछ फीस होते हैं, खासतौर पर जब उनको एक शहर से दूसरे शहर में मुंतकिल किया जाता है, क्योंकि ये कैदी जो थे उनमें से कुछ ऐसे थे जिनको अटक में रखा गया था और उनको पेशी पर लेकर आया जा रहा था। इन जो पुलिस वैन हैं इनके अंदर भी पुलिस गार्ड होते हैं और इसके साथ साथ जो पुलिस मोबाइल हैं वो भी चलती हैं किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए। लेकिन जाहिर है जब कोई समाज दुश्मन अनासर या दहशतगर्द इस तरह की प्लानिंग करते हैं और अचानक हमला होता है या कातिल का अगर हमला होता है तो उसको एंटिसिपेट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन देखना है कि कितना क्विक रिस्पॉन्स किया पुलिस ने और कितने क्विकली सूरत पर काबू पाया। अब तक की जो इतलात है उससे यही लगता है कि ज्यादा को बड़ी तादाद में कैदी फरार होने में कामयाब नहीं हुए। जाहिर है जब इस तरह की अफरा तफरी फैलती है तो फौरी तौर पर तस्दीक करना मुमकिन नहीं होता कि कौन सा कैदी फरार हो चुका है, कौन सा कैदी फरार नहीं हुआ। और फिर जब उसको GT रोड पर लेकर सरेआम दिन दिहाड़े ले जाया जाता है तो इस बात का तो इम्कान होता है कि कोई जो दहशतगर्द है उसको इंटरसेप्ट करे। लेकिन अगर फौरी तौर पर जितने मुतल्लिका थाने हैं, संजानी थाना है या तरनौल थाना है, उसके पुलिस एहलकार जो है वो पहुंच चुके हैं जाए मकाम पर जैब कुआं पर और उन्होंने काबू पा लिया है और दीगर अफसरान भी मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल है कि इसको ये तो कहा जा सकता है कि पुलिस ने एंटिसिपेट नहीं किया, लेकिन अगर काबू पा लिया गया और कोई कैदी फरार होने में कामयाब न हुआ तो यकीनी तौर पर पुलिस की कामयाबी होगी कि उसने एक हुआ और उस पर जल्दी काबू पा लिया। बिल्कुल तारिक चौधरी साहब, जगह जगह CCTV कैमरे जो हैं वो नस्ब हैं इस्लामाबाद में और ये मेन टूल प्लाजा के करीब ये जो है वाकया पेश आया है, किसी किस्म की कोई फुटेज सामने आई है? देखिए, ये जो वाकया है ये तो GT रोड पर पेश आया है, इस्लामाबाद से वापसी पर। इस्लामाबाद की जो सड़कों पर और इस्लामाबाद की जो मेन शाहराहें हैं वहाँ पर CCTV कैमरा है
अब मैं ये नहीं कह सकता कि जिस मकाम पर ये वाक़या हुआ है वहाँ को सीसी कैमरा CCTV कैमरा नजर थे या नहीं। अगर तो टोल प्लाजे के पास ये वाक़या हुआ होगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई फुटेज सामने आ जाएगी। लेकिन अगर ये सड़क पर और GT रोड पर चलते हुए जहाँ जो वीरान जगह है या कोई ऐसी जगह जहाँ पर आबादी ना हो या प्लाजा ना हो या कोई CCTV का निजाम ना हो, फिर मुश्किल है कहा जा सकता, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर वहाँ पर कैमरा हुआ उसके गिरदनवा में तो यकीनी तौर पर कोई ना कोई फुटेज इसके सामने आ जाएगी। तारिक चौधरी आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। एक दफा फिर अपने नाज़रीन को अपडेट करते चलें कि इस्लामाबाद संजानी टूल प्लाजा के करीब कैदी वैन पर हमला, नामालूम अफराद मुतादिद कैदियों को छुड़वा कर ले गए, कैदी वैन पर फायरिंग, शीशे भी तोड़ दिए। मुल्जिमान को अदालत में पेशी के बाद अटक जेल ले जाया जा रहा था और पुलिस की इजाफी नफरी इलाके में इस वक्त पहुंच चुकी है और मफरूम मुल्जिमान की तलाश के लिए ऑपरेशन का भी आगाज कर दिया गया है। पुलिस ने हमले में मुलविस 4 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया है। IG इस्लामाबाद की जानिब से भी बयान सामने आए हैं जिसमें बताया गया है कि 3 कैदी वैन में 82 मुल्जिमान मौजूद थे। कैदियों को पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। इस वक्त मजीद ताजा तरीन सूरत हाल क्या है जानेंगे। फहद बशीर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। फहद बताएगा मजीद कोई तफसील सामने आई है? देखिए बिल्कुल दहशतगर्दी के मुकदमात में गिरफ्तार PTI कारकुनान को ये छुड़वाने का मामला है। तो जो पुलिस की जानिब से संजानी टूल प्लाजा के अतराफ ने अब ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पुलिस ने फरार होने वाले तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि जराये ने ये बताया कि पुलिस और हमला आवरों के माबैन फायरिंग का तबादला भी हुआ और जबकि हमला आवरों की तादाद 20 से 25 थी। पुलिस जराये ने इस हवाले से हमें आगाह किया, जबकि पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया कि हमला आवरों की जानिब से कैदियों को छुड़वाने के लिए पुलिस वैन पर फायरिंग भी की गई। पुलिस की जानिब से हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा, जबकि जराये ने यह चीज बताई कि PTI कारकुनान पर पुलिस हिरासत से फरार होने का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा, ये जराये का बताना है। और जबकि इस वक्त जो इलाके में थाना संजानी के मकाम पर ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और जो जिस तरह के IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की जानिब से ये बताया गया था कि कैदियों को फरार करवाने की कोशिश नाकाम बना दी गई थी, जबकि फरार होने वाले कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब जो हमलावरों की तादाद बताई गई है वो 20 से 25 थी पुलिस जराये ने बताया, जबकि हमला आवरों की जानिब से कैदियों को छुड़वाने के लिए पुलिस वैन पर फायरिंग भी की गई। लेकिन अब तक जो तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से इस तमाम तर सूरत हाल पर कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी नहीं की गई, लेकिन जराये ने इस हवाले से हमें बताया कि पुलिस की जानिब से हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा, जबकि PTI कारकुनान पर पुलिस हिरासत से फरार होने का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। जबकि ये पुलिस की जानिब से अब संजानी टूल प्लाजा के तरफ में ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और पुलिस ने फरार होने वाले तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। जी फहद बशीर, जिस तरह आपने बताया कि ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है और पुलिस ने 4 मुल्जिमान को तो गिरफ्तार कर लिया था, मजीद भी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं या अभी ऑपरेशन का जो सिलसिला है वो जारी है? देखें बिल्कुल पुलिस की जानिब से ग्रैंड ऑपरेशन शुरू की है ताकि मजीद जो है वो जो तहकीकात है उसमें अमल में लाई जाए। लेकिन जो IG इस्लामाबाद की जानिब से जिस तरह दावा किया गया है कि फरार होने वाले कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी जानिब से ये तादाद भी बताई है कि 3 कैदी वैन में 82 मुल्जिमान मौजूद थे जिन्हें पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। कैदी संजानी टूल प्लाजा के पास नामालूम मुल्जिमान कैदी वैन पर हमला आवर हुए, ये IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का कहना था, जबकि पुलिस ने कैदियों को फरार करवाने की कोशिश नाकाम बनवा दी थी। जबकि अब जो पुलिस की जानिब से संजानी टूल प्लाजा के तरफ में ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जो आईनी शाहिदीन है उनसे भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने फरार होने वाले तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है, जबकि पुलिस और हमला आवरों के माबैन फायरिंग का भी तबादला हुआ। जराये ने ये सवाले से में आगाह किया कि हमला आवरों की तादाद 20 से 25 थी, जबकि हमला आवरों की जानिब से कैदियों को छुड़वाने के लिए पुलिस वैन पर फायरिंग भी की गई। पुलिस की जानिब से हमला आवरों के खिलाफ मुकदमा अब दर्ज कर लिया जाएगा, ये जराये ने हमें आगाह किया। जबकि अब जो पुलिस है इनकी जानिब से जो मजीद जो तहकीकात अमल में लाई जा रही हैं, जिस तरह के CCTV कैमरे की मदद से भी जो है वो हमलावरों की जो है वो शिनाख्त की जा सकती है। ताहाल अब तक इस वकूए की CCTV फुटेज भी सामने नहीं आई और पुलिस की भारी नफरी जो है जय वकूआ पर पहुंच चुकी है। और अब से कुछ देर कबल जो IG इस्लामाबाद हैं उनकी जानिब से गुफ्तगू भी उनका भी ये दावा था कि जो फरार मुल्जिमान है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पुलिस ने भी इस बात की तस्दीक की है कि जो मुल्जिमान फरार हुए थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जो हमलावरों की तादाद बताई गई है वो 20 से 25 के करीब थी। जी फहद आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। संजानी टूल प्लाजा के करीब कैदी वैन पर हमला हुआ है, नामालूम अफराद